Look at this mark sheet. This individual has an under 100 rank in the Civil Service 2022 examination. This person has scored 50 marks above the cutoff for this particular year. There are so many people like this who clear prelims back to back 3 times, 4 times, 5 times, 6 times, even more. There are people who clear prelims with a margin of 20 marks, 30 marks, 40 marks, here you can see 50 marks. When majority of us are not able to score even half of this, such a feat seems unbelievable. People clearing it back to back multiple times seems unbelievable. Hello everybody, this is Satyam Jain and I welcome you back to Understand UPSC. This video will be where your studies for Prelims 2024 will begin. In this video, we have done an in-depth analysis of the 2023 paper, the papers of 2021, 2022 as you can see on your screen. And we have in detail went through every question. We have solved every question again and again and again. A team of experts has solved every question again and again as you can see here. They are all marked, they are all solved. So that we can bring to you the most authentic analysis for the paper of Prelims 2024. It is only by knowing the past we can plan for the future. So I want you to stick to this particular video. Watch it completely to prove that you are a serious aspirant. Because everything that will be told here will be absolutely necessary for you to clear the Prelims 2024 examination. If you miss a single thing, it will be a negative point in your coming 6 months. So please keep a pen and paper and make notes and listen to it very carefully. Also, at the end of the video, there are some major announcements. I am not putting a timestamp because I want you to watch the whole video and then listen the announcements. So only people who will thrive and survive throughout this video, who will be persistent, will be able to understand the announcement. And mind you, one of these announcements is very important for Prelims 2024. Secondly, in this particular video, we will be discussing the sources and the strategy for Prelims 2024. But what is the basis of that? As I said, we have done an in-depth analysis. What does it mean? A technical analysis, question by question, and objective analysis, whereby we kept our subjectivity and post-exam as much as aside as we can. And lastly, we have done an aspirant-oriented analysis. Aspirant-oriented analysis. Everybody who was involved in this particular analysis had attempted the 2023 paper on the D-Day and scored more than 100 marks as per various cutoffs. They have cleared multiple prelims back to back. So this is done by a team of experts. This is not where we will be giving you some random things about कि आपको सपने आने चाहिए थे कि क्वेश्चन कहाँ से आने वाला and all of that. No, this is very highly aspirant oriented. Because, as I said, Understand UPSC is a platform by the students for the students of the students. That's why. So, first things first, let me clear out a few basic things so that I do not get abused later on. Pre-2023 was tough. It was tough, it was tougher, it was toughest. It was a paper where cutoffs will fall unprecedentedly, which has never happened in the history of UPSC. Itni low cutoff jayegi. But please, okay, now is the time to hear the truth. The paper of 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, maybe even 17, all of them were tough. 2016, the cutoff of prelims went nearly 115 marks. In 2017, it went down 10 marks to 105. 2018 and 19, it came to 98 marks and it has been falling ever since. 2023 will see a further fall. क्या दिखाता है ये? What does this trend show us? It shows us that the prelims examination is getting tougher. It also shows us that the prelims 2024 examination will be tougher than 2023. भाई 2023 टफ था, बहुत टफ था, लेकिन अब now is the time to stop fearing, start analyzing, accepting and improving. Now is the time to start the process for 2024. डर लिए हो गया खत्म, रो लिए धो लिए, बर्बाद हो गया, एक साल सब हो गया. Now is the time to move ahead. Please understand one very simple cliched thing. Every year people will clear. Right? मैंने अपनी एनालिसिस की वीडियो में पोस्ट 2023 प्रीलिम्स ये बात कही थी कि people will clear, but the way they clear should not be luck based, should not be random. And I stand by what I said. But still, हमें तो अगला एग्जाम देना है ना, हमें तो अगला अटेम्प्ट देना है ना. So what we need to figure out is
वो लोग नहीं जिनका लक या तुक्के से प्रीलिम्स निकला, बट लेट अस लुक इन द माइंडसेट ऑफ दोज पीपल हु आर क्लियरिंग इट रिपीटेडली। अगर आप उनको 2024 के एग्जाम में बैठा दोगे वो फिर क्लियर करेंगे। आपको क्या लगता है, इफ दिस पर्सन वुड सेट फॉर 2023 या 2024 या गॉड फॉरबिड कोई भी 30 किसी भी साल, विल ही नॉट क्लियर प्रीलिम्स? 2022 का पेपर आसान था क्या? द कट ऑफ फेल एज लो एज इट हैज नेवर बीन, सो इट वॉज नॉट एन ईजी पेपर। तो क्या कर रहे हैं लोग ऐसा सही? वॉट आर दे डूइंग? लेट्स ट्राई टू लुक एट दैट हु क्लियर रिपीटेडली, what are they doing? So for that, let us break down the 2023 का पेपर। ऑलराइट, प्लीज फोकस एंड अंडरस्टैंड दैट कहीं भी मैं इस पूरे वीडियो में ये बात इंडोर्स नहीं कर रहा हूं कि 2023 का पेपर आसान था। मैं अभी बोल दे रहा हूं ताकि बाद में कमेंट्स में कोई ये ना बोले कि मैंने आसान बोला उसको। आई एम नॉट सेइंग दैट इट वाज इजी, आई एम जस्ट सेइंग दैट इट हैज हैपेंड, इट विल हैपन अगेन एंड द 2024 प्रीलिम्स विल बी इवन वर्स। आज ही बोल रहा हूं, 6 महीने पहले बोल के छोड़ रहा हूं, और खराब पेपर आएगा। नाउ इट इज अप टू यू, यू वांट टू लुक एट 2023 एंड क्राई, you want to listen to the breakdown with me and not breakdown at the end of 2024. Okay, so 25 questions in this particular examination were core factual. They were highly tough, they were not found in the general sources. These I call the difficult, toughest questions. Another thing that was tough was more than 40 questions were there where option pattern completely changed. This is what made the exam so tough. बट नाउ लेट्स कम अ लिटिल बिट, ये सबको पता है ना, सबको पता है ऑप्शन चेंज हो गए सर, पेयरिंग वाले ऑप्शंस आ गए सर, 25 क्वेश्चंस बहुत टफ आ गए, सबको पता है। नाउ लेट अस कम टू समथिंग एल्स। देयर वर 28 क्वेश्चंस वेयर करंट अफेयर एंड स्टैटिक वर लिंक्ड। दिस इज द बाइफिकेशन इनटू 4 कैटेगरीज: नेशनल, लोकेशन बेस्ड, इंटरनेशनल एंड स्कीम्स। broken down into 4 categories, 28 such questions, current affair and static were linked. Then, now the most important, there were 30 questions which I will call directly solvable. They were either from static or they were PYQ based. Now what do I mean by PYQ based? समझो इस चीज को। Either the theme was repeated or the trend was repeated or the pattern was repeated. इसका क्या मतलब होता है? ट्रेंड पैटर्न का क्या मतलब होता है कि if a particular type of question has appeared in 2022 and a similar type of question is appearing in 2023, then even if you don't know about the 2023 question, you'll be able to solve it by looking at the trend and pattern of the answer of the 2022 paper. Right? Either it is based on the research of previous year के options और इट इज डायरेक्टली रिपीटेड। ऐसा कई बार होता है कि डायरेक्टली क्वेश्चन रिपीट हो जाता है, डायरेक्टली स्टेटमेंट रिपीट हो जाते हैं। सो दिस इज कॉल्ड पीवाईक्यू बेस्ड। आसान हो गई चीज। नाउ अदर थिंग इज स्टैटिक। स्टैटिक मतलब स्टैंडर्ड सोर्सेज से। ठीक है, स्टैंडर्ड सोर्सेज क्या है, क्या नहीं है, कौन से आपको पढ़ने हैं, क्या नहीं पढ़ना है, वी विल टॉक अबाउट दैट इन दिस पर्टिकुलर वीडियो एज वेल। ठीक है, बात समझ आई। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड ऑल्सो मोर देन 15 क्वेश्चंस वर देयर दैट वर प्योरली बाय, प्लीज लिसन, इस पूरी वीडियो से एक वर्ड एक फ्रेज लेके जाना, MCQ aptitude. There were more than 15 questions that were purely MCQ aptitude based. आपने कहीं नहीं पढ़े होंगे। ये बहुत डायल्यूटेड नंबर है, बहुत डायल्यूटेड, क्योंकि टीम ने ऐसे बोला लिखने के लिए। अगर सिर्फ मेरी चले ना, आई विल राइट दिस नंबर एज ग्रेटर देन 30। लेट मी टेल यू दिस, क्योंकि मेरा तो यही है, मेरे को ये चीज ही क्लियर कराती है प्रीलिम्स, और मुझे ये एक्सेप्ट करने में कोई शर्म नहीं है। जब मेरा MCQ एप्टीट्यूड डेवलप नहीं हुआ था, मेरे से प्रीलिम्स नहीं क्लियर होता था। व्हेन आई डेवलप्ड MCQ एप्टीट्यूड, आई वाज एबल टू क्लियर इट 3 टाइम्स बैक टू बैक। तो मैं तो झूठ बोलने बैठा नहीं हूं, मैं तो सच बोल रहा हूं, यही चीज है। नाउ व्हाट इज दिस MCQ एप्टीट्यूड? क्या है इसका मतलब? इट मीन्स दैट यू आर एबल टू सॉल्व एन MCQ इवन विदाउट हैविंग द कंप्लीट इन्फो अबाउट इट। आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं है, फैक्ट्स नहीं है, डेटा नहीं है, वो नॉलेज नहीं है, फिर भी आप उस MCQ को सॉल्व कर दो। Now is the time to listen to some harsh truth. हो क्या गया ना, over a period of time this thing has been so ridiculed by some people, aspirant non aspirant, कि इसको ऐसे धब्बे की तरह देखने लगे हैं लोग। Let's clear down some myths. Time for some harsh truths. ठीक है, सुनो ध्यान से। पहली बात, MCQ एप्टीट्यूड सिर्फ UPSC एग्जामिनेशन का नहीं है, इट इज फॉर एवरी एग्जामिनेशन। आप कैट दो, आप जैट दो, आप IIT के एग्जाम्स दो, आप कुछ भी दो, आप नीट दो, इन एवरी एग्जाम देयर इज MCQ एप्टीट्यूड। सेकेंड, इट इज वेरी इजी टू से दिस फ्रेज। एक फ्रेज बहुत कॉमन हो जाता है प्रीलिम्स के बाद, हर साल कॉमन होता है, हर साल, पिछले 6 साल से देख रहा हूं, हर साल
एलिमिनेशन हैज़ बीन एलिमिनेटेड, यूपीएससी हैज़ एलिमिनेटेड द एलिमिनेटर्स, हर साल सुन रहा हूँ, बहुत आसान होता है कहना, पेपर से बाहर निकलो यही कहना शुरू कर दो, तो ब्लेम गेम पूरा का पूरा इस पर शिफ्ट हो जाता है. बट इट इज़ वेरी टफ टू डेवलप द एप्टीट्यूड टू इंटेलिजेंटली गेस. एलिमिनेशन का मतलब ये थोड़ी है कि बैठ के एबीसीडी में से तुक्का मार दिया जय माता दी बोल के. इसका मतलब ये है डेवलपिंग दैट एबिलिटी एंड कैपेबिलिटी टू इंटेलिजेंटली गेस, developing that aptitude to intelligently guess a question even without knowing the complete information about it. आपको क्या लग रहा है जिस इंसान के 140 स्कोर कर रहा है उसको क्या 70 क्वेश्चंस में पूरी की पूरी नॉलेज थी? इज दैट ह्यूमनली पॉसिबल? कुछ गलत भी होंगे तो इसका मतलब क्या 80 क्वेश्चंस पूरे के पूरे आते थे जो ठीक हुए हैं? नो, नो. डेवलप द एप्टीट्यूड. इट इज टफ बट यू हैव टू डू इट. अच्छा, जो लोग ये बोलते हैं कि एलिमिनेशन नहीं होता है कुछ भी, प्लीज मेरा बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आप लोगों से भी, आप लोगों ने भी बहुत हवल्ला मचाया था इस चीज पे, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है. मेंस में, इन मेंस देयर आर क्वेश्चंस दैट यू नो नथिंग अबाउट एंड स्टिल यू राइट एन आंसर टू दैट. जब नहीं पता तो छोड़ दो ना, क्यों लिख रहे हो उसका आंसर? वहां पे तो बड़ी जल्दी आपका आंसर राइटिंग एप्टीट्यूड काम आ गया, आपके स्ट्रक्चर्स फ्रेमवर्क्स काम आ गए. यार हर एग्जाम का ना एक एप्टीट्यूड होता है, ये बात आपको बताते नहीं है लोग, ठीक है? ये बात सिर्फ उनको पता होती है जो या तो तैयारी करते हैं किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की, या जिनके सीनियर्स होते हैं, जिनके भाई बहन होते हैं, जिनको गाइड कर रहे होते हैं. बाकी किसी को पता नहीं होता. यार मेंस में तो आंसर राइटिंग एप्टीट्यूड चेक होता है ना. सिमिलरली इन प्रीलिम्स देयर इज एन एमसीक्यू एप्टीट्यूड. एवरीबडी यूजेज इट. नाउ आई एम नॉट सेइंग कि लोग यूज करके झूठ बोल रहे हैं, ऐसे भी लोग हैं, लेकिन ऐसा सब नहीं है ऐसे. Everybody uses the MCQ aptitude either knowingly or unknowingly. The harshest fact is that either you can develop this aptitude or you can just sit at your home in a comfortable chair after prelims 2024 and say the cool phrases like elimination has been eliminated etc etc. भाई ये मर्जी आपकी है अब, because जो डेवलप करेगा इस MCQ एप्टीट्यूड को वो क्लियर करेगा एग्जाम, वो मेंस लिखेगा. सिंपल सी बात है, आप मान लो चाहे नहीं मान लो. दिस इज, यार एक बात बताओ, लेट अस गो बैक टू द एनालिसिस. 25 क्वेश्चंस तो ऐसे हैं जो हिल ही नहीं सकते, जो आते ही नहीं है, तो बच गए 75 क्वेश्चंस, ठीक है? अब इसमें से भी 28 क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसमें करंट अफेयर और स्टैटिक लिंक्ड है. सिर्फ 30 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो लाइक बेसिक स्टैटिक है, बेसिक पीवाईक्यू है, तो इनमें से भी 30 के 30 आप ठीक नहीं कर सकते. जो बचे 15 वो भी आपको नहीं आते हैं, वो भी आपने कभी सुने नहीं है. तो इसका मतलब आप इन 30 क्वेश्चंस में से इनमें से भी मान लो आपके 6 गलत हो गए, 24 ठीक हो गए. इफ यू गेट 24 करेक्ट, नेट 22 करेक्ट, कितना स्कोर आया? 44. यहां से भी मान लो कितना स्कोर कर लिया आपने? 30 भी स्कोर कर लिया, 74. कैसे क्लियर करोगे कट ऑफ इफ यू आर नॉट डेवलपिंग द एमसीक्यू एप्टीट्यूड? एवरीबडी यूजेज इट. अगर कोई बोल रहा है ना कि मैं एमसीक्यू एप्टीट्यूड यूज नहीं करता हूँ, सिर्फ नॉलेज के बेसिस पे एग्जाम क्लियर कर रहा हूँ, नहीं होता ऐसा. आपको नहीं पता चलता है यार, आपको नहीं पता चलता है. मैं बता देता हूँ, आप अपना पेपर मुझे दिखाओ, मैं पूछता हूँ आपसे कि आपने क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया, इसका सोर्स कहाँ पे है, बताओ कहाँ पढ़ा आपने. ये नहीं पता होता है, इंसान अननोइंगली यूज करता है. इसी पेपर में आपको प्रूफ दिखाऊंगा, शांति से सुन लेना पूरी वीडियो, ठीक है? अंडरस्टैंड दिस. देयर वर 36 easy questions this year. If you get 27 correct, 9 incorrect, that means you get 24 correct. There were 30 moderate questions this year. If you get 12 incorrect, still you get 18 correct, that is net 14 correct, which is a net of 38 correct, मतलब 76 marks. तो अगर आप बिल्कुल ही यूज नहीं कर रहे हो एमसीक्यू एप्टीट्यूड, तो आप एटमैक्स 76 मार्क्स लेके आ सकते हो. सिंपल सी बात है. 66 क्वेश्चंस हो गए, 66 हो गए, बचे जो 40 क्वेश्चंस, अराउंड 40 क्वेश्चंस, ये एप्टीट्यूड बेस्ड प्लस इसमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो आपको लीव ही करने हैं. इसमें से सपोज करो आप 10 लीव कर दो, इफ यू आर लीविंग 10 क्वेश्चंस, देयर आर 30 क्वेश्चंस इन विच यू विल अप्लाई द एप्टीट्यूड. मैं मरे से मरे हालत में कह रहा हूं, अगर आपने सीख लिया ना डेवलप करके, यू विल गेट 15 क्वेश्चंस करेक्ट, विच मीन्स अ नेट ऑफ 20 मार्क्स. 76 20 हो गए कितने? 96 मार्क्स. मेंस की कॉल आ गई, चलो रैंक लेके आगे बढ़ो. भाई ये 20 नंबर ना, दीज 20 मार्क्स यू हैव टू गेट देम. ये तो सबके आ रहे हैं, ठीक है? ये सबके नहीं आ रहे हैं, और ये आपको लाने पड़ेंगे, तब जाके बेसिक कट ऑफ क्लियर होती है. नाउ अंडरस्टैंड दैट दिस सिंपल थिंग है ना. हाउ आर पीपल स्कोरिंग 30 40 50 60 मार्क्स अबव द कट ऑफ? कैसे कर रहे हैं? नोबडी कैन रीड 10 सोर्सेज, है ना. आप कल को बोलो कि यार एक क्वेश्चन उपेंद्र सिंह से आया था, मैंने पूरी उपेंद्र सिंह पढ़ी थी. इज दैट ह्यूमनली पॉसिबल? विल यू रीड 1 MCQ पर 1 बुक? ऐसे होगा क्या? 100 बुक्स पढ़ के जाओगे क्या? और उसमें मल्टीपल स्टेटमेंट्स होते हैं, तो 300-400 बुक्स, उनको 300-400 बार रिवाइज करके, लाइक मजाक चल रहा है? नहीं, दिस इज नॉट व्हाट टेक्स प्लेस. दिस इज इम्पॉसिबल टू रीड 10 सोर्सेज एंड देन रिवाइज देम. MCQ aptitude is the key. You have to have it.
द हायर यू हैव इट द हायर यू स्कोर। भाई सुनो, हेलो, मैं कोई कोर्स नहीं बेचूंगा एमसीक्यू एप्टीट्यूड पे। तो अगर मैं ये बता रहा हूँ, मेरे को सेल्फिश मोटिव नहीं है। बात समझ में आएगी तो मानना, नहीं समझ में आएगी कोई दिक्कत नहीं है, आप अपने तरीके से भी क्लियर करो, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आपको कोई ये कह रहा है ना कि मुझे स्टेटमेंट जितने मैंने मार्क किए मुझे वो सारे 100% आते थे, आप खुद से पूछ के देखो ये बात सच हो सकती है क्या? यू विल आर यू ओनली मार्किंग द आंसर्स दैट यू नो 100%, यू हैव रेड 100%? खुद से पूछ के देखो, लीव एवरीथिंग असाइड। नहीं है सच। द हायर द एमसीक्यू एप्टीट्यूड द हायर द स्कोर इज। सीधी सी बात है भाई। मेरे को 4 दिन मिले थे इस बार 2022 वाले प्रीलिम से पहले, एंड आई स्कोर्ड नियरली 12-13 मार्क्स अबव द कट ऑफ। अगर एप्टीट्यूड नहीं होता, मेरे को तो कोई करंट अफेयर रिवाइज ही नहीं था, मेरा तो कोई स्टैटिक पोर्शन रिवाइज ही नहीं था, मेरे तो कोई पीवाईक्यू रिवाइज नहीं था, मेरे तो एक टेस्ट सीरीज क्या 2 क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए थे। हाउ इज दिस पॉसिबल? अगर एमसीक्यू एप्टीट्यूड नहीं है तो मैंने तो दिखाई अपनी मार्कशीट आपको। हाउ इज दिस पॉसिबल इफ आई डू नॉट हैव दैट एमसीक्यू एप्टीट्यूड? होता है ये, इसको डेवलप करना सीखो। इवन टू गेट द मैक्सिमम इन दीज आंसर्स, इन दीज आंसर्स, इन दीज आंसर्स, हर जगह लगेगा। इसको ट्रिक टेक्निक बोलना बंद करो, ये ट्रिक टेक्निक कुछ नहीं होता, हवा हवाई नहीं है कुछ भी, ठीक है? इट इज ऑल बेस्ड ऑन द एप्टीट्यूड दैट यू डेवलप। क्वेश्चंस कर करके कैसे डेवलप करते हैं, हाउ डू यू डेवलप इट? चलो, इट विल गेट अ लॉन्गर वीडियो, आई विल टीच यू दिस, ठीक है? मैं ही पढ़ाऊंगा, मैं ही बताऊंगा, कोई और नहीं बताएगा, मैं बताऊंगा। पीवाईक्यू से कैसे डेवलप करना है, टेस्ट सीरीज से कैसे डेवलप करना है, एनालिसिस से कैसे डेवलप करना है, प्रैक्टिस से कैसे डेवलप करना है, इस सबको कैसे इंटीग्रेट करना है, आई विल टीच यू दैट। जस्ट स्टिक विद अस, बस सुनो ध्यान से, करते जाओ। आपका काम करना है, बताना हमारा काम है। इट्स आवर वे टू शो यू द पाथ, इट्स योर टू वर्क ऑन इट सिंसियरली। नाउ लेट्स कम टू द सोर्सेज दैट यू हैव टू फॉलो। सो मैं फिर से वही बोल रहा हूँ, जो सोर्सेज अभी बताऊंगा जेनरिक हैं, आपने हमेशा सुने हैं। अब यहाँ पे देर आर 2 कैटेगरी ऑफ पीपल, 1 who will trust us and who will follow them, second who will not trust us and who will go hunting for other resources, and 2 months या 1 month before prelims examination they will comment on the understand UPSC group, सर रिवाइज नहीं हो पा रहा है, क्या करें? मैं बोल रहा हूँ अभी, डू नॉट हंट फॉर टफ क्वेश्चंस, हंट फॉर एमसीक्यू एप्टीट्यूड इफ यू वांट टू। ऐसा नहीं होना चाहिए कि 2 क्वेश्चंस इस साल उपेंद्र सिंह से आए थे, ठीक है? नाउ पीपल विल स्टार्ट इन उपेंद्र सिंह। भाई लास्ट ईयर 2 क्वेश्चंस एएल भाषम से आए थे, उस बुक की साइज देख लोगे ना, नींद नहीं आएगी रात को। आई बात समझ? लास्ट ईयर उपेंद्र सिंह से एक भी नहीं आया था, इस साल 2 आए हैं, लास्ट एएल भाषम से 3 आए थे, 2-3 आए थे, इस बार एक भी नहीं आया। हर साल बुक पढ़ोगे क्या? नहीं। तो चुपचाप सोर्सेज की लिस्ट दे रहा हूँ, सुनो, फॉलो करना। पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत प्लस एनसीईआरटी 11th-12th 90% क्वेश्चन हो जाएंगे। इकोनॉमी के लिए इफ यू हैव ऑलरेडी रेड मृणाल सर की हैंड आउट, देन स्टार्ट रिवाइजिंग देम, स्टार्ट रिड्यूसिंग देम टू नोट्स, छोटे नोट्स, क्योंकि दे आर मोर देन 1200 पेजेस, और ये पढ़ना लास्ट में पॉसिबल नहीं होता है भाई। मैं पिछले कई सालों से देख रहा हूँ पीपल कमिंग एंड कंप्लेनिंग दिस कि सर मृणाल सर के हैंडआउट्स पढ़ लिए थे, अब रिवाइज नहीं हो पा रहे हैं। तो क्यों पढ़ रहे हो अगर रिवाइज नहीं हो पा रहे हैं? तो गॉस्पेल ट्रूथ नहीं होता है कुछ भी, या तो उनको अभी रिड्यूस कर लो, बहुत अच्छे टीचर हैं सर, है ना, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, या तो अपनी एफर्ट डालो एंड रिड्यूस दीज 1200 पेजेस टू समथिंग दैट इज लाइक छोटा यार, कुछ जो रिवाइज हो जाए। या फिर विवेक सिंह सर की बुक आती है इंडियन इकोनॉमिक्स की, बहुत अच्छी बुक है, इसकी पीडीएफ पोस्ट कर दूंगा मैं अपने चैनल पे आज ही, अंडरस्टैंड यूपीएससी टेलीग्राम चैनल पे, विल गेट द पीडीएफ। पढ़ के देख लो इसको, बुक को एक बार 1-2 चैप्टर्स पढ़ के देख लो, अगर समझ आ रही हो तो कंटिन्यू कर लेना, नहीं तो मृणाल सर के हैंडआउट्स पे वापस चले जाना। अभी टाइम है ये करने का, डिसाइड करने का। ये लिखा है ना, ये इसको मत भूल जाना, और है ये, एंड नहीं है, भूल मत जाना इसको। इनमें से एक ही सोर्स करना है कोई। कमिंग टू एनवायरनमेंट, इधर पिक शंकर आईएएस और पिक पीएमएफ आईएएस, इनमें से कुछ भी एक पकड़ लो, अच्छे से पढ़ लो, यू आर सॉर्टेड। कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है? अच्छा, ऑल्सो हर सब्जेक्ट की डिटेल्ड स्ट्रैटेजी, उसको कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, इसी चैनल पे आएगी। तो आपको अपनी तरफ से दिमाग नहीं लगाना है, आपको बस काम करना है। नेक्स्ट, ज्योग्राफी के लिए क्लास 11th एंड 12th की एनसीईआरटी प्लस कुछ हाई यील्डिंग एरियाज होते हैं, कुछ हाई यील्डिंग टॉपिक्स होते हैं जिनको डेप्थ में जाना पड़ेगा, उसके लिए 9th एंड 10th से कुछ चैप्टर्स रेफर करूंगा। अंडरस्टैंड यूपीएससी टेलीग्राम चैनल पे भी आएगा, यूट्यूब पे भी आएगा, कनेक्टेड रहना। देन लेट्स कम टू द बिगेस्ट डिजास्टर, हिस्ट्री। हिस्ट्री के लिए मिनिमम सोर्सेज जरूरी हैं, क्योंकि ईच सोर्स यू कैन नॉट रीड एंड रिवाइज, इट सो बोरिंग एंड इट्स सो मोनोटनस एंड स्टिल क्वेश्चंस विल नॉट कम।
तो जितने सोर्सेज बता रहा हूँ यही करने हैं बस। आर्ट एंड कल्चर के लिए नितिन सिंघानिया के सिलेक्टेड चैप्टर कहाँ बताए जाएंगे, अंडरस्टैंड यूपीएससी के टेलीग्राम चैनल पे, यूट्यूब चैनल पे। सेकंड, फाइन आर्ट्स की क्लास 11th की एनसीईआरटी एन इंट्रोडक्शन टू फाइन आर्ट्स, छोटी सी बुक है, मेरे नोट्स हैं, अंडरस्टैंड यूपीएससी टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, देख लेना कैसे नोट्स बनाते हैं, समझ में आ जाएगा। एंशिएंट एंड मिडाइवल के लिए हिस्ट्री की न्यू एनसीईआरटीज हैं, थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 1 एंड 2 दोनों पार्ट करने हैं, एक पार्ट एंशिएंट का, एक पार्ट मिडाइवल का है, ठीक है। इसके साथ साथ तमिलनाडु की बुक आती है एंशिएंट एंड मिडाइवल पे, हर साल इससे क्वेश्चंस आते हैं, बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट क्रिएट करती है, रीड दिस बुक। सो ये दोनों हैं, है ना, ये दोनों हैं, प्लस हैं, इधर नहीं है, ये प्लस है। एंड लास्टली फॉर मॉडर्न इंडिया जस्ट स्पेक्ट्रम, नथिंग एल्स, कुछ नहीं पढ़ना, और यहीं से आएंगे क्वेश्चन, हर साल यहीं से आते हैं, ठीक है। कोई प्लासी टू पार्टीशन नहीं, कोई शेखर बंदोपाध्याय नहीं, कोई ये आप बहुत सारी बुक चल गई आजकल, कुछ नहीं पढ़ना है आपको, कोई इसी तराटी पता नहीं क्या क्या चल गया, नहीं कुछ नहीं, चुपचाप स्पेक्ट्रम पढ़ो, रिवाइज करो, मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करो, यहीं से क्वेश्चंस आएंगे। क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने हैं वो एप्टीट्यूड डेवलप करा देंगे हम, तो यहीं से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नाउ कम्स अ एरिया जहां से लगभग 20 क्वेश्चंस आते हैं, विच इज साइंस एंड टेक, मैपिंग, आईआर, स्कीम्स, करंट अफेयर, सारा मिला के। This will be solved from current affair monthly magazine, including the questions that comes from you say environment, economy, polity, जो इसके भी करंट के क्वेश्चंस आते हैं, ये सारा इसमें से मेजर चंक जो आपको करना है दैट विल बी डन फ्रॉम करंट अफेयर मंथली मैगजीन, प्लस द स्टैटिक कॉन्सेप्ट्स। फॉर एग्जाम्पल अगर एसएनटी का आपने करंट अफेयर में कुछ पढ़ा है, यू शुड नो द स्टैटिक कॉन्सेप्ट बिहाइंड इट, इफ यू डू दिस मच यू आर सॉर्टेड, इतना करके चले जाओ, यू विल गेट इमेंस बेनिफिट फ्रॉम दिस, इमेंस बेनिफिट। मंथली मैगजीन करा रहा हूँ, ओआरएन का प्लान चल रहा है, जिसको नहीं पता है देख लो अंडरस्टैंड यूपीएससी टेलीग्राम चैनल पे, फॉलो इट, ठीक है, फॉलो करो उसको, हो जाएंगी मैगजीन्स पूरी, बहुत शांति रहेगी जीवन में। स्पेसिफिक सोर्सेज बियॉन्ड रेगुलर सोर्सेज, इसका क्या मतलब होता है, सपोज करो कि आपने साइंस एंड टेक के लिए कोई टेक्निक पढ़ी, आपको समझ नहीं आ रही है, गो एंड वॉच अ यूट्यूब वीडियो, है ना, सिर्फ बुक्स तक सीमित नहीं रहना है, गो एंड वॉच अ यूट्यूब वीडियो, हो जाएगा क्लियर कॉन्सेप्ट, उसका स्टैटिक समझ में आना चाहिए, 3 पेरेंट बेबी कैसे बन रहा है, क्या होती है माइटोकॉन्ड्रियल डिजीज, राइट, क्या है ग्रीन हाइड्रोजन, अगर बेसिक पता है ना क्वेश्चन ठीक करके आओगे, यूपीएससी कॉन्सेप्ट पूछता है, बात समझ आई। आगे बढ़ते हैं। देन देर आर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ये है भाई सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इससे इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है, अगर पूरे प्रीलिम्स पेपर में सबसे इंपॉर्टेंट कुछ है तो वो पीवाईक्यू है, क्योंकि इट विल फॉर्म द बेस ऑफ योर एप्टीट्यूड जो हम डेवलप करेंगे। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, यहाँ से थीम्स रिपीट होती हैं, हाइडिंग एरियाज रिपीट होते हैं, यहाँ पे ट्रेंड एंड पैटर्न रिपीट होते हैं, इसका मतलब समझाऊंगा मैं, वेट फॉर द अनाउंसमेंट ऑल्सो। सो 20 to 25 ईयर्स ऑफ पीवाईक्यूज आपको ये करने ही करने हैं, इसमें से बहुत सारे मैं भी कराऊंगा, बहुत सारे मैं करवाऊंगा, ठीक है। द प्लान विल बी गिवन टू यू इन अनदर 1 or 2 वीक्स, पूरा का पूरा प्लान आ जाएगा जो आपको करना है, यू हैव टू फॉलो दैट, वी विल बी टेलिंग यू विच पीवाईक्यूज टू बी डन व्हेन, विच आर इंपॉर्टेंट, कैसे एक्सट्रैक्ट करना है, सब कुछ हम बताएंगे, यू जस्ट हैव टू फॉलो इट एंड यू विल बी डन, ठीक है। नाउ प्लीज अंडरस्टैंड, मैं पिछले 3 सालों से बोल रहा हूँ, जब से एसएफजी चला रहा हूँ, प्रीलिम्स GS1 पेपर इज नो मोर GS1, इट इज ऑल्सो CSAT। प्रीलिम्स का GS1 का पेपर भी CSAT है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे एप्टीट्यूड चेक हो रहा है, एप्टीट्यूड चेक हो रहा है, इट इज ऑल्सो द आर्ट ऑफ पिक चूज एंड लीव, कौन सा क्वेश्चन सही है, कौन सा क्वेश्चन में क्या चूज करना है, कौन सा क्वेश्चन छोड़ना है, बिकॉज these days UPSC is so smart that it is placing the tough questions in between very strategically to break down the confidence of aspirants, क्योंकि भाई अल्टीमेटली इट इज अबाउट प्रेशर हैंडलिंग, ठीक है। लास्ट में कुछ टेस्ट लगाने हैं वैल्यू एडिशन के लिए और प्रैक्टिस के लिए, कोई खरीदना मत बैठ जाना, अभी कोई एनरोल मत कर लेना टेस्ट सीरीज में, पैसे फेंकने हैं फेंको, लेकिन ऐसी जगह मत फेंको कि आपको नुकसान दे, बात समझ में आ रही है, डू नॉट थ्रो मनी समवेयर वेयर इट विल हिट यू बैक, ओके। समझदार को इशारा काफी है, चुपचाप बैठे रहो, कोई जरूरत नहीं है कोई प्रीलिम्स क्रैश कोर्स टेस्ट सीरीज खरीदने की, यही हो जाएगा सब, हम ही बता देंगे कौन से टेस्ट लगाने हैं, कब लगाने हैं, तो शांति से बैठे रहो। Now, please understand, all these sources put together, revised multiple times as per the plan that will give you, will help in solving tough interlinkage वाले questions. Easy तो sources से हो ही जाएंगे, जो tough questions आएंगे interlinkage वाले आएंगे, current affair static का link, geography में IR का link, ये सब यहीं से हो जाएंगे when all these sources will be put together and revised multiple times. बात समझ में आई? Now, let me show you some questions ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि भाई बहुत छोटा सा ये है ना, I'll come with the 2023 का detailed analysis very soon on this channel, maybe the coming week पे शायद यही होगी वीडियो, so we will be showing you every question, हर क्वेश्चन दिखाएंगे कैसे सॉल्व करना था, ठीक है। तब तक देखो, जिसने भी मेरी
MCQ एप्टीट्यूड डेवलपमेंट की सीरीज फॉलो करी है जहाँ पे मैंने इंटेलिजेंट गेसिंग सिखाई है, वो इन क्वेश्चंस में से एक भी क्वेश्चन गलत नहीं करेगा. दिस इज फ्रॉम माई ओन लाइक एक्सपीरियंस, जो मैं आपको बताता चलूँगा. देखिए पहला स्टेटमेंट है, मैंने सीधा सीधा हमेशा समझाया है, डेटा आएगा 90% केसेस में गलत होगा. यू कट द फर्स्ट स्टेटमेंट, यू गेट द राइट आंसर. स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट. सेकंड देखने की भी जरूरत नहीं है. ठीक है, आगे बढ़ो. सी दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, 15 करोड़ 25 करोड़, दो डेटा है, गलत हो जाएगा स्टेटमेंट. ऑल बैंक लोन्स, गलत हो जाएगा स्टेटमेंट. नीदर वन नोर टू. ठीक है, आगे बढ़ो. यहाँ पे देखो 18%, डेटा गलत, डेटा गलत होगा तो स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट. एक ही क्वेश्चन है, पहले वाला देखने की भी जरूरत नहीं है. यू रीच टू योर आंसर. आंसर आ गया सी. आगे बढ़ो. नन ऑफ देम, नन ऑफ देम, नन ऑफ देम, तीनों काटो. सिखाई थी ये चीज़, दोबारा सिखाऊंगा. जिसको नहीं आती है सब बताऊंगा. ये चीज़ें, ये बहुत छोटी चीज़ें हैं, बहुत डिटेल में, बहुत डेप्थ में जाके समझाऊंगा, हर चीज़ समझ में आएगी. ये क्वेश्चन 2023 के पेपर के हैं जिसमें मैं लग रहा था कि एक भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है. आंसर आ गया नन. चलो आगे बढ़ो. कार्बन फाइबर आर यूज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कंपोनेंट्स इन ऑटोमोबाइल एंड एयरक्राफ्ट. क्या समझा रखा है? जनरल स्टेटमेंट्स आर ऑलवेज करेक्ट. प्रीलिम्स के पहले समझाया था, दोबारा सब कुछ कराऊंगा बहुत डिटेल में, बहुत प्रोफेशनली, बहुत डेप्थ में जाके. सो डो नॉट वरी इफ यू डो नॉट नो दीज थिंग्स, आई टीच यू देम. कैन नॉट पूरी स्पेसिफिक डेटा के साथ बताई थी कि कैन नॉट जब भी आता है तो गलत होता है. कितनी परसेंटेज में गलत होता है, क्या होता है? काटो दोनों के दोनों. नीदर हो गया आंसर. सॉरी, वन ओनली हो गया आंसर. ये जेनेरिक है, ये करेक्ट हो जाएगा. वन ओनली विल बी द आंसर. देन कैन बी, कैन बी, कैन बी, ऑल थ्री. ठीक है, लुक एट दिस वन. सीधा सीधा बताया था मैंने. आई हैव टोल्ड दिस एटलीस्ट 6-7 टाइम्स व्हेन आई एनालाइज द लास्ट. मैंने जब आपको पिछले 5 साल के पेपर कराए थे, मैंने कम से कम 6-7 बार बताया था दैट वेर एवर इट विल से कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइंस, इट विल बी रॉन्ग. यहाँ पे भी ये गलत है. स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट. ये खत्म हो गया, आंसर आ गया. कितनी देर लगी क्वेश्चन सॉल्व करने में? इफ यू नो इंटेलिजेंट गेसिंग, इफ यू हैव डेवलप्ड द एमसीक्यू एप्टीट्यूड. शेड्यूल्ड एरियाज 2020 के पेपर में, 2021 के पेपर में आप समझो पैटर्न और ट्रेंड का क्या मतलब होता है. इधर 2020 का पेपर हो, 2021 का हो, देयर वाज अ क्वेश्चन जहां पे दे रिप्लेस्ड द वर्ड ट्राइबल मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, विद द वर्ड मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट. मैंने तभी बताया था कि हमेशा ट्राइबल मिनिस्ट्री के साथ ऐसे ही करते हैं. यहाँ पे भी देखो, इन्होंने मिनिस्ट्री को रिप्लेस करके होम मिनिस्ट्री कर दिया. गलत है ये, बाकी दोनों सही है. आ गया आंसर. सो दिस इज कॉल्ड ट्रेंड एंड पैटर्न. सेम चीज फॉलो कर रहे हैं, सेम चीज, सेम ट्रेंड एंड पैटर्न है. अब गालो आप बैठ के कि नहीं हमें तो हर चीज की नॉलेज ही चाहिए. भाई कब तक पढ़ोगे? 10 साल पढ़ोगे क्या बैठ के? एप्टीट्यूड डेवलप करो, एग्जाम निकालो, मेंस अच्छा लिखो, रैंक लेके आओ, बात खत्म हो गई. बैठे थोड़ी रहना ये गो पे लेके. देन कम टू दिस 60%, गलत काटो, आंसर आ गया. स्टेटमेंट 1 करेक्ट, स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट. फर्स्ट स्टेटमेंट देखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी. लुक एट दिस, सब मशरूम, सब मशरूम, सब मशरूम, सब मशरूम, ऑल 4 आर करेक्ट. आ गया आंसर. ये सब क्वेश्चंस आई हैव शोन यू 10 क्वेश्चंस, 10 क्वेश्चंस. ये देखो, ये सब वो लोग हैं जिनको मैंने एट अ टाइम ये सब चीज़ें पढ़ाई हैं. मैंने उन्हीं को बोला था, उन सबके 100+ आ रहे हैं. मैंने उन्हीं को बोला था कि पेपर को एनालाइज करो. आई सेड देम दैट एनालाइज द पेपर. दे आर स्कोरिंग 100% इन 2023 एंड दे हैव सेड मी कि इन क्वेश्चंस के अलावा और क्वेश्चंस, मैंने बोला था कि 8-10 क्वेश्चंस मेरे को बताओ जहां तुमने ट्रिक्स लगाई थी, तो 10 क्वेश्चंस मैंने आपको दिखा दिए. इनके अलावा इसमें वो एक्सचेंज स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन नहीं डाले, वो 3 क्वेश्चंस में हैं. चेस ओलंपियाड, अग्नि मिसाइल एटसेट्रा, 3 क्वेश्चंस. ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट वाले भी नहीं यूज़ किया, जैसे कि सऊदी अरेबिया एग्जाम्पल के साथ बता रखा है. वर्ड्स को ब्रेक करके कैसे सॉल्व करना है वो भी नहीं किया ऐड. सेंट्रल का स्टेट, स्टेट का सेंट्रल, जनरल मिस्टेक डन बाय यूपीएससी, अपॉलॉजीज. एग्जाम्पल गार्ड वाला क्वेश्चन, ये भी हमने इसमें ऐड नहीं किया. देखते जाओ. देन जीसीएम क्वेश्चन 20, बाइंडिंग एंड ऑल, 2 स्टेटमेंट कैन बी कट बाय लॉजिक्स. मैंने सिखाया कैसे स्टेटमेंट को बाइंड किया जाता है, हाउ यूपीएससी यूजेस कंजंक्शन टू डू दिस. ठीक है, नहीं किया ऐड. 7 to 8 questions can be corrected by PYQs, reference of positive statements. 10 क्वेश्चंस मैंने दिखाए, कम से कम यहाँ पे 10-15 क्वेश्चंस की बात हो गई. क्या क्या कितना यूज किया था मैंने? बोला था ना 30. तो भाई हर चीज नॉलेज से रट के समझ के नहीं होती है. एप्टीट्यूड डेवलपमेंट इज अ पार्ट ऑफ दिस एग्जामिनेशन. यू हैव टू डू दैट. उसे इज्जत देनी शुरू करो. डोंट स्टार्ट रिडिक्यूलिंग इट. मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 150 नंबर आ जाएंगे. वो एक कोई बोलते हैं ना 150+ इन प्रीलिम्स बाय एलिमिनेशन, ये तो बकवास की बात है. बट एटलीस्ट 25 to 30 marks, at least in questions where you are eliminating and reaching down to 2 options. Now you have to select one of them. In questions जो जिन लोगों का कुछ कुछ मार्क्स से कट ऑफ रुक जा रही है, आपको हेल्प करेगी एमसीक्यू एप्टीट्यूड की चीज़. आपकी सिली मिस्टेक्स कम कराएंगे. इट विल हेल्प इन इमेंसली. ठीक है. सो व्हाट इज द क्रक्स ऑफ दिस एंटायर वीडियो, दिस एंटायर थिंग?
पहला, ध्यान से सुनो आप, फॉलो द मेंशन सोर्सेज रिलीजियसली, पहली बात। डोंट फॉलो एनीथिंग एल्स, कुछ नहीं करना है और, है ना। हिस्ट्री के लिए कोई दूसरी बुक नहीं उठानी है, पॉलिटी के लिए कुछ चार लोग नहीं पढ़ने हैं, कोई कोर्सेज में एनरोल नहीं करना है, फालतू के क्रैश कोर्सेज में कुछ नहीं होता, वहाँ पे पैसे वेस्ट करके फिर वहीं आओगे, आके वही डाउट पूछोगे कि सर क्रैश कोर्स में कुछ नहीं हुआ, नाउ व्हाट शैल वी डू, कुछ नहीं फॉलो करना है। और मल्टीपल रिविजन्स हम कराएंगे प्लान के अकॉर्डिंग, PYQs हम कराएंगे और हम बताएंगे कैसे करना है, आधे हम कराएंगे आधे आपसे करवाएंगे। नियरली आई एम थिंकिंग ऑफ कवरिंग 7-8 ईयर्स ऑफ PYQs, यू विल डू 7-8 ईयर्स ऑफ PYQs, हम लगभग मिला के सारे करेंगे, हम बताएंगे आपको PYQs आपको कैसे करने हैं। देन द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज MCQ एप्टीट्यूड, ऑफ कोर्स दिस इज द की फ्रेज दैट यू हैव टू टेक फ्रॉम दिस पर्टिकुलर वीडियो। अगर आपको समझ में आ गया है व्हाट डज MCQ एप्टीट्यूड मीन, प्लीज कॉमेंट इन द comment section that yes you will develop it, yes I will follow it, yes I have understood it. Do comment that. Then please, the crux is that cut off clearing questions and marks will come in this fashion. जितने इन मार्क्स से कट ऑफ क्लियर होती है वो इतने से आ जाएगा, चाहे पेपर कितना भी टफ आए। 2024 प्रीलिम्स विल बी टफर देन 2023, आई एम डिक्लेयरिंग दिस टुडे। सो व्हाट, this is not a paper of marks, this is not a paper of percentage, it is a percentile game. You just have to come in the top percentiles. कितना भी टफ आ जाए, the cutoff will keep on falling, you just have to follow these things and you will be clearing the cutoff. इतनी सिंपल सी बात है, that is it, खत्म बात। okay, so for people who have made it this far, I have few announcements to make। जैसे कि मैंने बताया, MCQ एप्टीट्यूड डेवलपमेंट सीरीज थ्रू UPSC PYQs एंड टेस्ट MCQs will start either by the end of December or by the starting of January, पूरा हम कराएंगे इसमें। The plan will be given to you within 2 weeks. Then subject wise high yielding areas and strategy will start by the month of December, जहाँ पे हम आपको सब्जेक्ट वाइज बताएंगे कि इस सब्जेक्ट को ऐसे पढ़ना है, इसमें से ये एरियाज इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ते हुए PYQs को ये ध्यान रखना है। आई विल टीच यू एवरीथिंग, we will teach you everything. There is a highly dedicated team of people who are expert in prelims. There at the back end, I'll teach, वो बताएंगे, मैं पढ़ाऊंगा, आप एग्जाम क्लियर करोगे। देन द मोस्ट इंपॉर्टेंट, वी विल फॉर्म अ कोर ग्रुप ऑफ सिंसियर हार्ड वर्किंग एस्पायरेंट्स फॉर UPSC प्रीलिम्स 2024। सिर्फ वो लोग जो कंसिस्टेंट हैं, सिर्फ वो लोग जो सिंसियर हैं, हार्ड वर्क करना चाहते हैं, ओनली फॉर देम, जो बहाने नहीं बनाएंगे, only for them we will form a core group. Regarding this, every update will be given on the Understand UPSC Telegram channel, the link of which is given in the description and also pinned in the comment section. So please click it, join it and be a part of it. I hope you have understood this. Please drop a comment if you have understood this. Please drop a comment if you have understood the entire strategy, the entire sources. For now, this is Satyam Jain signing off till we meet next time very soon. Jai Hind, Vande Matram.